So children, last time we have studied the law of triangle to add two vectors, right? Do you remember? Now this time, today, we are going to learn how to add two vectors using law of parallelogram. First, you listen to the law statement. Law says that if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, I am drawing here the parallelogram and then I'm explaining you the statement because the statement is a little longer and confusing. If two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, so let us represent the two vectors with help of two sides of a parallelogram. So this is first part. I broke the whole definition in three parts. The first part, two vectors represented by the two adjacent sides of a parallelogram. Then resultant of these two vectors is represented by the diagonal of the parallelogram. So let us first complete the parallelogram, then only we can draw the diagonal. I completed the parallelogram. Resultant of the two vectors is represented by its diagonal. Now you know the diagonal can be this one also and this one also. So go through the whole line. Resultant of the two vectors is represented by the diagonal of the parallelogram passing through the intersection point of the two vectors. So this diagonal is not the resultant. This diagonal is a resultant which is passing through the intersection point of the two vectors. In magnitude and direction, that means what? In magnitude and direction means its magnitude is represented, resultant of the two, magnitude is represented with the length of this arrow and direction is represented with the arrowhead. So now just go through the definition once again. If two vectors are representing the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant, that means sum, is represented by the diagonal. Which diagonal? Diagonal which is passing through the intersection point of the two vectors. तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से टेल टू टेल ज्वाइन करते हुए दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे, फिर जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके इस वेक्टर के पैरेलल इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर के पैरेलल इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और तब वो डायगोनल जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है वो डायगोनल हमें इन दोनों का सम देगा, मैग्नीट्यूड लेंथ से और डायरेक्शन एरोहेड से। गेटिंग द पॉइंट? तो अब इसको थोड़ा सा ठीक से देख लो। अगर ए और बी ये दो वेक्टर्स हैं जो हमें ऐड करने हैं तो इनकी टेल टू टेल ज्वाइन करके हमने इस तरीके से रख दी। उसके बाद हमने ये डायगोनल कंप्लीट किया और ये बहुत पावरफुल टूल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें कई बार रिजल्टेंट का डायरेक्शन गेस करना होगा, समझना होगा, तो सिर्फ उसके लिए ही हम दोनों फोर्सेस का ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का क्वेश्चन में वो किधर से जाएगा। अब अगर दो वेक्टर्स आपने एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए हैं पैरेललोग्राम के, तो इनके बीच अगर एंगल है थीटा और जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो जैसे पिछली बार प्रूफ किया था हमने इस तरीके से एक ट्राइंगल कंप्लीट करके बिल्कुल सेम प्रूफ जो हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल में किया था। तो प्रूफ हम यहाँ पे दोबारा नहीं कर रहे हैं, हम सीधे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम जो पिछली बार मिला था, वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 स्क्वायर प्लस 2, वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड and cos of angle between the two vectors. Similarly, the tan alpha, alpha is angle made by the first vector, then second vector sin theta upon first vector plus
सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा। और जहाँ पर हम एरो नहीं लगा रहे हैं या वर्टिकल लाइंस में एरो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइंस में एरो ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तीनों वेक्टर्स हैं। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम इसको अप्लाई करते हैं और आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये ABC है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, फ्रिक्शन को और बाकी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए थ्रू आउट द फिजिक्स, इवन इन क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन करने के लिए तुमको, SHM के क्वेश्चन करने के लिए तुमको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरा फोकस करो आगे जो टेक्निक समझाने जा रही हूँ उस पर। सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिए हैं जो रीजनिंग के बढ़िया सवाल है। व्हेन सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज मिनिमम। तो हम दोनों वेक्टर्स के ए बी को ऐड करने के लिए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। अब देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज़ 1। तो दो ए वेक्टर बी वेक्टर के पेयर के लिए तब सब मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट होगा और वो इन टर्न चलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो रिजल्टेंट विल बी a प्लस बी। तो दो वेक्टर्स का सम यानी रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हों और पैरेलल टू ईच अदर हों। ठीक, तो मैक्सिमम when the two vectors are parallel to each other, then resultant is maximum. And when two vectors are having angle between them 180, एक वेक्टर इस तरह से है तो दूसरा वेक्टर इस तरह से है, उनके बीच का एंगल 180 है, यानी दोनों वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इन टर्न हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच आफ्टर कमिंग आउट ऑफ अंडर रूट a माइनस बी। तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस होगा अगर उनके बीच का एंगल 180 होगा, और यही दो वेक्टर्स के सम की मिनिमम वैल्यू होगी। तो जब अपोजिट टू ईच अदर है और पैरेलल टू ईच अदर है तब उनका सम मिनिमम होगा यानी रिजल्टेंट, और जब एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल टू ईच अदर और सेम डायरेक्शन में है, तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा विच इज सम ऑफ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि दो गिवन वेक्टर का है, बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द गिवन वेक्टर। क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जिन दो वेक्टर्स को सम कर रहे हैं उनमें से किसी एक से छोटा भी हो सकता है? तो यहाँ पर देखो, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज a प्लस बी। तो यहाँ पर वेक्टर r हमेशा a और b दोनों से बड़ा होगा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 0 पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थीटा इक्वल टू 180 पर रिजल्टेंट आता है a माइनस बी। तो यहाँ पर r a से तो कम हो ही गया, क्योंकि जब b पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तब r मिलता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से थीटा इक्वल टू 180 पर r एक वेक्टर जिसमें से दूसरा सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उससे मैग्नीट्यूड में कम हो सकता है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर placed are kept unchanged and angle between them is changed, then what will be the effect on their resultant vector? तो पहले उन्होंने फिर से मैग्नीट्यूड पर सवाल किया है, तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो हमेशा लिख कर आप बॉक्स में कर दीजिए कि भाई इस पर एनालिसिस करके मैं आंसर दे रहा हूँ। तो ये मैंने लिखा। इसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूँ, ए बी को चेंज नहीं करूँ, थीटा को इंक्रीज करूँ, तो थीटा 0 से जब इंक्रीज करना शुरू करता है तो याद करो थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है और इसलिए रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होता है, दैट इज a प्लस बी, दोनों वेक्टर्स का सम मैग्नीट्यूड का। रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम
यानी -1 होती है। तो रिजल्टेंट a माइनस बी के बराबर होता है। तो थीटा पर मैक्सिमम और 180 पर मिनिमम। इसका मतलब कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है रिजल्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। रिजल्टेंट की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होती है, 180 पर मिनिमम होती है और 90 डिग्री पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इंक्रीज करता है तो आंसर होना चाहिए कि रिजल्टेंट डिक्रीज करता है। और अब हम आ जाते हैं उस टेक्निक पर जो हमको सीखनी है। क्वेश्चन था कि कैन 3 वेक्टर्स बी एडेड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट बी 0। तो आज हम 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उन्हें ऐड करना सीखेंगे। मेथड हम ट्रायंगल लॉ या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वो मेथड सिखा रही हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल है वो मोस्टली हमें ये पता करने के लिए यूज़ होता है कि भाई रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की ओर आ रहा है। लेकिन जो तरीका होता है कैलकुलेट करने का रिजल्टेंट वो सबसे पहले ध्यान से सीखेंगे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या 3 वेक्टर्स ऐसे ऐड किए जा सकते हैं कि उनका रिजल्टेंट 0 हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक केस लेते हैं। ये हमेशा बहुत यूनिवर्सल और पॉपुलर केस है कि एक ऑब्जेक्ट पर 3 इक्वल फोर्सेस काम कर रहे हैं और इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि हर 2 फोर्स के बीच का एंगल 180 है। ठीक, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैंने F1 इक्वल टू F, F2 इक्वल टू F और F3 इक्वल टू F लिया। तीनों के बीच का एंगल 120 है और हमें इसका रिजल्टेंट पता करना है। इसका रिजल्टेंट एक बार तो हम पता करेंगे और बाकी बाद में हम इसको एज इट इज़ एज अ स्टेटमेंट यूज़ कर लिया करेंगे एज अ रूल। अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के 2 तरीके तुम सीख चुके हो। एक तो लॉ ऑफ ट्रायंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जब यूज़ करोगे तो फॉर्मूला यूज़ करोगे R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दूसरा तरीका, हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ऑलरेडी सीख रखा है कि हम किसी वेक्टर को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सूटेबल, बहुत ही यूनिवर्सल है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली तुमको कहीं फंसना नहीं पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई 3 वेक्टर्स काम कर रहे हैं और तीनों 120 डिग्री पर हैं एक दूसरे से। तो ये देखो F1, ये देखो F2 और ये देखो F3। ठीक, अब हमने ध्यान से देखो क्या किया, हमने तीनों वेक्टर्स को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। एक डायरेक्शन है x एक्सिस के अलोंग और दूसरी है y एक्सिस के अलोंग। तो जब हम F1 को रिजॉल्व करने चले तो हमने देखा कि ये डायरेक्शन अगर हम x लें तो ये तो ऑलरेडी x है, तो इसको रिजॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, ये तो खुद ही x के डायरेक्शन में है। दूसरी डायरेक्शन हमने ली y एक्सिस। ठीक, तो अब इसे तो रिजॉल्व करना नहीं है, इसको हमने x डायरेक्शन में ले ही रखा है। दूसरी जो है F2 उसको रिजॉल्व करेंगे x और y। अब ध्यान से देखो रिजॉल्व कैसे करते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। अब अगर तुम x एक्सिस पर ड्रॉप करो, ये ओरिजिन है जिस पर ऑब्जेक्ट बैठ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन है और ये तुम्हारी माइनस x एक्सिस की डायरेक्शन है। यहाँ पर तुमने ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया, जो अब इमेजिनेशन में हम ड्रॉप कर रहे हैं, हम उसको दिखा नहीं रहे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर भी दूँ तो फ्यूचर में हम ड्रॉप करके कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। हमें पता है कि कॉस और साइन पता करना है, केवल थीटा पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बिना परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इसे और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी ये पहली बार है तो मैं तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने तो मुझको x एक्सिस के अलोंग ये मिला और y एक्सिस के अलोंग ये मिला। अब हमको देखना ये है कि भाई एंगल कितना है, तभी तो साइन और कॉस डिसाइड होगा। तो एंगल देखने का तरीका देखो क्या है कि ये जो पूरा एंगल है, एक मिनट में कुछ और कलर लूँ। अब ध्यान से देखो, मुझको ये कंपोनेंट पता करना है तो मुझे ये एंगल या ये एंगल, मतलब इन कंपोनेंट्स और मेन वेक्टर के बीच का कोई एक एंगल पता चल जाए।
तो देखो मुझे पता है कि F1 और F2 के बीच का एंगल है, ये एंगल है 120, ठीक। और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90। तो अगर ये 90 है और ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 को आप 120 में से माइनस कर दीजिए तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल हो गया 30। और जैसे ही हमें ये एंगल मिला, इसका ये कंपोनेंट हो गया F2 cos 30 और ये कंपोनेंट हो गया F2 sin 30। जिस कंपोनेंट और वेक्टर के बीच एंगल पता चल जाए वो कॉस कंपोनेंट हो गया और इसका परपेंडिकुलर जो साथी है वो साइन कंपोनेंट हो गया। तो हमने फटाफट लिख दिया यहाँ पर इसको F2 cos 30 और इस ब्लैक कंपोनेंट को लिख दिया F2 sin 30, ठीक। अब इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। इस वाले वेक्टर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर तो वो कुछ ऐसा होगा, देखो। ठीक, तो अब इससे जब इस पर और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये हो गया वाई कंपोनेंट। तो इसको फिर वही बात है, हमको यही तो पता करना है कि किसी एक कंपोनेंट और वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है। तो यहाँ भी वही तरीका हमने अपनाया। अब देखो F1 और F3 के बीच में ये 120 का एंगल है और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो ये एंगल 90 और ये पूरा 120, तो ये हो गया 120 माइनस 90 दैट इज 30। और जैसे ही हमें ये एंगल पता चला, हमने इस एंगल से अटैच्ड कंपोनेंट को F3 cos 30 कह दिया और इसके परपेंडिकुलर साथी को F3 sin 30 कह दिया। तो पहला काम हमने क्या किया था, अगर तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो तीनों को रिजॉल्व कर दिया एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। इसके बाद हमने देखा कि अब कंपोनेंट से मतलब है, अब मेन वेक्टर्स जिनको रिजॉल्व कर दिया है अब उन वेक्टर को अपने दिमाग से हटा देंगे। इसको रिजॉल्व नहीं किया है तो ये एज इट इज़ बना रहेगा पिक्चर में। इसको रिजॉल्व कर दिया है तो अब इसके कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, इसको दिमाग से हटा देंगे। इसे रिजॉल्व कर लिया है तो इसके कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, इसे दिमाग से हटा देंगे। तो देखो अब सिचुएशन ये है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, दो फोर्सेस F2 sin 30 और F3 sin 30 इधर एक्ट कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना है? तुम्हें पता है कि हमने तीनों फोर्सेस F1 F2 F3 तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल लिया है। तो F2 sin 30 F/2 हो जाएगा, F3 sin 30 भी F/2 हो जाएगा। तो x एक्सिस के अलोंग ये दोनों मिलकर कितने हुए? F। राइट साइड में जो फोर्स है वो भी F, लेफ्ट साइड में जो फोर्स है वो भी F। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि सम करने पर जो भी x डायरेक्शन में तीनों का कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है, देखो तो x डायरेक्शन में तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ये तीन देंगे, ये और ये दो मिलके। x डायरेक्शन में रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट होगा वो तो एक्चुअली ज़ीरो है क्योंकि राइट साइड में फोर्स F, लेफ्ट साइड में फोर्स F, तो रिजल्टेंट ज़ीरो। तो देखो हमने कैसे लिखा, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज F माइनस F दैट इज ज़ीरो। सिमिलरली अब y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में F2 cos 30 है ना, और y डायरेक्शन में दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक F2 का कंपोनेंट F2 cos 30 और दूसरा F3 का कंपोनेंट F3 cos 30। अब अगर F1 और F3 दोनों F हैं तो F2 cos 30 इज ऑल्सो F cos 30 और F3 cos 30 इज ऑल्सो F cos 30।
तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो आप कहोगे कि जो रिजल्टेंट होता उसका वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट F2 cos 30 माइनस F3 cos 30 ज़ीरो है। तो जब x और y दोनों कंपोनेंट किसी वेक्टर के ज़ीरो हो गए तो वो वेक्टर ऑब्वियसली, जिस वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। अब ये दोनों ज़ीरो है तो रिजल्टेंट हो गया तीनों वेक्टर का ज़ीरो। ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है और ये कितने भी फोर्सेस पर लग सकता है। तो कितने भी फोर्सेस हों, सबको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लीजिए, फिर उन डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा सारे x डायरेक्शन के फोर्सेस कंसीडर करके, y डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा सारे y डायरेक्शन के कंपोनेंट कंसीडर करके, और रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल लोगे अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो अब ये जो मेथड है ये हम लोग प्रैक्टिकली NLM में यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन मेथड्स को यूज़ करेंगे। हालांकि मैं तुम्हें क्वेश्चन करने से पहले जो ग्राफिकल मेथड था ना वेक्टर्स को ड्रॉ करके, वो भी सिखा दूंगी, लेकिन उसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते नहीं हैं। हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ही बेस्ट और सब कंडीशंस पे अप्लाइड होता है, इजी है ये।